and happy morning class. Good morning. Good morning, ma'am. Yes, very good morning. Today we are going to learn lesson number 11 from Sudhamurthy's Wise and Otherwise with the title A Bond Betrayed on Rakhi Day. See the title of this story, A Bond Betrayed on Rakhi Day. What do you understand by a Rakhi Day? For the Raksha Bandhan, yes. Some of them can also call it as the day of Narli Purnima in the regions of Konkan. It is also the full moon day. पूर्णिमा का दिन होता है और रक्षाबंधन बोलते हैं हम इसको और जिसमें राखी बांधी जाती है। और किसको राखी बांधता है? भाई को। ऐसा भी तो हो सकता है ना एक दूसरे को राखी बांधना। What I want to say is, of course, it is a rakhi tied to brothers hatched by the sister. However, the bond is in between both of them. दोनों का प्यार का जो रिश्ता है वो सेलिब्रेट करने का दिन है राखी डे, जिसमें भाई बोलता है कि मैं आपकी रक्षा करूँगा और बहन भी क्या बोलती है मैं भी आपके लिए हमेशा सपोर्ट सिस्टम रहूँगी। तो भाई बहन के बहुत ही प्यारे रिश्ते का एक सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है हमारा इंडियन राखी डे और रक्षाबंधन और नारी पूर्णिमा डे। Now let us understand what this title stands for. It stands for a bond, of course, between a brother and a sister, but which is betrayed. To betray is to deceive. Now here in this story, this is not a general story of a goody-goody brother and sister relationship. There is something different, something deviant, something that nobody can imagine with the central character of the story, Tara. Tara's experience with Rakhi Day is something different. It is a tragic experience for her because her own brother had sold her in the prostitution market on this very day. And hence the title, I don't understand the significance, A Bond Betrayed on a Rakhi. See, the profession of prostitution is discussed in indirect way in this lesson. How victims of exploitation are unfortunate women. Tara stands here as a representative of one of the females who has forcibly put in the profession of prostitution. He is a middle-aged Darbaki, as the story tells us, a commercial sex worker. However, being a prostitute, as you all know, in Marathi or Hindi it is known as Vaishya, where it is a forcible or voluntarily or involuntarily the way into which sex is considered as a business. However, when Sudhamurthy works for such women, when she goes and tries to talk to them, initially there is inhibition. वो औरतें उनके साथ बात नहीं करते थे, पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करते थे, क्योंकि पहले ही वो बहुत ही खुद को ट्रेजिक मान रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेजिक एरियाज में रह रहे हैं और खुद की ऐसी उनकी कहानियाँ हैं जो डायरेक्टली सुधामूर्ति के साथ वो शेयर नहीं कर पाते। उसमें से एक है तारा। अब तारा के साथ बहुत बार सुधामूर्ति जी की बातें हुई क्योंकि उनके लिए उनके उत्थान के लिए उनको कुछ काम करना था। तो ऑफकोर्स आप किसी के लिए तभी काम कर सकते हैं जब आप उनके बारे में कुछ जानते हैं, राइट? So Sudhamurthy ji wanted to help these commercial sex workers by giving them certain education, also offering them alternative ways for livelihood, which is a problem. If they do not have any alternative means of supporting their life, they have nothing to do but to again to go in the prostitution. So Sudhamurthy ji wanted to give them certain education, maybe some skill-based activities so that they would have earned for their livelihood and then if they wish, they would have come out of this area of prostitution. So Tara's several meetings with Sudhamurthy has given rise to the special lesson under consideration. It is Tara's story, who is actually a commercial sex worker, a prostitute who is forcibly put
into the profession of prostitution. Then Sudhamurti meets her again and again. At one of the instances, she breaks out, and that is the day when Sudhamurti ji calls her Akka. Akka is an elder sister in South Indian languages. In Maharashtra also we do call, right? Akka, मोठ्या बहिणीला म्हणतो आपण तो Akka. Sudhamurti ji was not aware of her name, and when she sees Sudhamurti ji meets Tara, met by then she was not aware of her name, and she beckons her as Akka, and that word pinches Tara a lot. She sits on the steps of a temple. She has brought some bangles for herself, and those bangles are in her hands, and she is crying a lot. She starts crying uncontrollably because it is the day of Nari Purnima. It is the day of Rakhi, and somebody is calling her Akka, which triggers that tragic memory of the day of when brother had sold her into the prostitution market, when she is not even aware of. So that is the tragic memory of the brother who really made her life a hell, for whom actually she was supporting, and inadvertently she was sold off, and then there is no way to come out of that profession. So she is finding it so much difficult in that situation when she is extremely loving towards knowledge. She wanted to learn how to write, how to read from Sudhaji, and then she speaks about the story to Sudhaji, and hence the lesson. Shall we begin the lesson now? Yes, ma'am. I hope you might have understood how important it is for a lady, a female, to have education. That's what Tara says throughout, and also Sudhaji, that there is a life. People, they do not select bad professions for that instance on their own, but there are some instances in their life that nobody can imagine. Here again there is a question mark on the relationships of a brother and a sister that has to be highlighted. So let's all start. A bond betrayed on Rakhi Day. My work at the Infosys Foundation has brought me face to face with many women who have suffered a great deal for no fault of theirs. सुधामूर्ति जी जब काम कर रहे हैं सोशल वर्क के बहुत सारे फील्ड्स में, तो उनके साथ बहुत सारी औरतें मुलाकात होती है जो बेवजह से उनका कुछ गलती ना होते हुए भी बहुत दुख भरी जिंदगी बिता रहे हैं. मोस्ट ऑफ देम आर अनएजुकेटेड. सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, बहुत सारे उनमें से शिक्षित नहीं है. एंड विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. Victims of exploitation, as here I have written, their innocence has been exploited. ठीक है, उनका अच्छाई का गैर फायदा उठाया गया है, बराबर. तो एक्सप्लॉयटेशन की विक्टिम्स है, उनको पता ही नहीं, किसी ने तो उनका यूज करके उनको ट्रेजिक इंसिडेंट्स में डाल दिया है. Most of them are uneducated and victims of exploitation. One of the objectives of our foundation is to try and help these unfortunate women as much as possible. तो हमने बहुत सारा फील्ड्स में देखा है कि इन्फोसिस फाउंडेशन ने कैसे काम करने की कोशिश की है. हो सकता है प्राइमरी स्कूल्स, ठीक है, फिर स्कूल्स के बच्चों को यूनिफॉर्म्स, ज़रूरत की बुक्स, लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं. अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्किंग फॉर women who need help of Infosys Foundation. Sudhamurti ji is actually going and meet them and trying to help them. Those who slip into prostitution are almost always innocent women. जब हम बात करते हैं prostitution की, हमें बहुत ज़्यादा सदमा लगता है. ऐसे टॉपिक पे हम भले कैसा बात करें. You all know as like we call it as a red light area. But have you ever thought about the women who are actually the women victim of exploitation there? They are all exploited. They are all exploited by their innocence. किसी ने तो उनको जानबूझ के वहाँ पे बेच दिया. हो सकता है वो उनकी खुद के घर वाले हो, कोई दोस्त हो. You know, women trafficking is rampant across world. We being women, we have to be extremely sympathetic towards all kinds of women in the world. This is the first important principle that you should always follow.
being women, we have to be thoughtful at why this should have happened. There is a tragic story of many women because they are nothing but the victims of exploitation. उनको किसी ने तो फंसाया होता है, नहीं तो उनके पास कोई चारा नहीं होता है, और इसकी वजह से वो प्रोस्टिट्यूशन जैसे एक अलग एरिया में खुद को देखते हैं. उससे उभर के आने के लिए अगर मान के चलो उनको अलग से जिंदगी शुरू भी करनी है तो भी उनके हाथ में कुछ अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, चार पैसे कमाने के लिए कुछ अलग से स्किल और एजुकेशन नहीं होता है. समझ रहे हो? तो इसके लिए उनके जो फ्लैट्स है उसमें जाके सुधा मूर्ति जी काम करना चाहते हैं. कितनी बड़ी बात है. हमारे लिए बहुत आसान है, हम नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है, उनको भला बुरा कहेंगे, बट looking towards the humanity and thinking about the reasons which arose due to war, that really makes us understand what we can do and why they are so. Most have been forced into it at a young age and find it difficult to escape. बहुत सारी औरतों के साथ सुधा मूर्ति ने जब बात की तो उनको पता चला कि इनमें से बहुत सारी औरतें जब छोटी छोटी बच्चियां थी तभी उनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेला गया था. वो खुद से ऑफकोर्स नहीं चाहते थे. अब चिल्ड्रन एज यू नो दे आर ऑल नॉट कैपेबल टू सपोर्ट देमसेल्व्स. छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनको भी दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं, ना वो खुद को सपोर्ट कर सकते, मदर फादर नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, and they have forcibly put into this profession. Somebody might have just sold them for certain hundreds of rupees, thousands of rupees, maybe lakhs of rupees, but they have been sold. Do you believe that one can be sold? Are we commodity? But this is happening. This is the plight of a woman in general. This is so bad. And now, when knowing this, Sudhamurti is trying to help all these kinds of women. She is talking that it is difficult for them to escape. इस दलदल से बाहर कैसे आए? बहुत मुश्किल है. आप उनकी जगह पे जाके सोचोगे तो पता चलेगा कि वो समाज में एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा. तो कैसे होगा? कुछ दूसरी चीज़ों से चार पैसे कमाए तो वो चीज़ें उनके पास कैसे आएगा? What skill they do have, what education they do have to start their life again, all over again. Who will marry them? Can they have their own families again? Will they be acceptable? So many questions. So many express a desire to leave the profession, but that is next to impossible. बहुत सारी औरतें वो बात करती हैं कि हमें इस प्रोफेशन से बाहर निकलना है, खुद की अलग से ज़िंदगी शुरू करनी है, लेकिन डिफ़िकल्ट इससे बाहर करना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. नेक्स्ट इम्पॉसिबल, मान के चलो लगभग इम्पॉसिबल है, अशक्य कहने के लिए. Since they have been in this trade from a young age, they have not developed any other special skills. छोटे पद से ही वो इस प्रोफेशन में है तो अलग स्किल्स पढ़ाई डेवलप हुआ ही नहीं है. Hence they are not fit for employment and are unable to find alternative means of earning livelihood. इसकी वजह से ये हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए वो कहीं पर भी फिट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ना ही 10th 12th ग्रेजुएशन, इट्स नॉट देयर. स्किल्स कुछ अगर कौशल्य है, व्यवसाय कौशल्य, कुछ वोकेशनल वो भी नहीं है. That's the biggest problem for them, that they don't have developed any special skills, any pertinent education. In those rare cases, when a woman does manage to extricate herself from this miserable life, our society does not accept her. और इन सभी चीज़ों को अगर हम समझें तो कोई एक ऐसी औरत जो इस सारी चीज़ों से खुद को बाहर निकलने की कोशिश करती है तो समाज उसको स्वीकारता नहीं. This is also the biggest problem. Sudhamurti ji here is talking about the settlement, rehabilitation of prostitutes. उनको हम फिर से एक मेन प्रवाह में, देश के एक अच्छे सिटीजन के प्रवाह में अगर लेके आना चाहते हैं तो उनको क्या क्या करना होगा. Sudhamurti ji is saying at grassroots levels that what as a woman I can offer a help so that they can be also one respectable person in society again. Okay, so that's important to give them certain education, give certain vocational guidance to have that thought process in the society which will allow the society to accept them as normal human being. Okay, so now
In the last few years, I have had some experience in working for these unfortunate women. अभी कुछ दिनों से मैं इन औरतों के साथ मिल रही हूँ, उनके लिए काम करने का मौका मिला. Initially, they would avoid meeting or even talking to me. तो शुरुआत में वो मुझसे मिलने से कतरते थे, मिलते नहीं थे, मिलते भी थे तो बात नहीं करते थे. है ना, बहुत बार ऐसा होता है. अगर किसी को आपके साथ शेयर नहीं करना है कुछ, तो आपसे वो अवॉइड करेगा, बात नहीं करेगा. ठीक है. अब बट ऑन रिपीटेड विजिट्स दे ओपन अप ग्रेजुअली एंड स्टार्टेड स्पीकिंग टू मी. लेकिन बहुत ज़्यादा विजिट्स किए सुधामूर्ति ने, क्योंकि वो दिल से चाहते थे मैं उनकी हेल्प करूँ, उनको जानूँ, उनके प्रॉब्लम्स को समझूँ, सो दैट मैं कुछ सोल्यूशंस उनको प्रोवाइड कर सकूँ. तो वो बताते हैं कि बहुत बार जाने के बाद थोड़ा सा वो बात करने लगे. द स्टोरीज दे नरेटेड वेयर हार्ट ब्रेकिंग. जो उन्होंने अपनी दास्तानें सुनाई वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी. उनकी स्टोरीज सुनने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा लगा, ताकि उनकी स्टोरीज रियलिस्टिक थी, कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं थी. उनके कुछ रिश्तेदारों ने, हो सकता है माँ बाप बहन भाई, रिश्तेदारों ने, खुद के हस्बैंड ने, बहुत सारे जनों को ऐसा ही था, फंसाया था, बेचा था, और वो वहाँ पे आए थे और उनको बाहर निकलने का कुछ भी जरिया नहीं था. तो अपने आप में वो बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गए थे और हमें कौन अभी हेल्प करेगा, अभी तो हमारा यही ज़िंदगी खत्म होगा. ऐसे वो पूरा उनका मेंटेलिटी में थे. उस दौरान अभी आगे बात कैसे बढ़ती है देखो. The stories they narrated were heartbreaking. At times, I was really at a loss about what to say or how to react. Their agony pained me deeply. तो अपनी स्टोरीज लोग बताते थे कि मैं, फॉर एग्जाम्पल, जब मैं छोटी थी, हम ऐसे घूमने गए थे, फिर हो गया कि बिछड़ गए, फिर मुलाकात नहीं हो पाई. You can imagine in olden times, अभी के जैसा भी, अभी के दौर में भी कभी कभी ऐसा होता है. छोटे बच्चे वगैरह से ट्रैफिकिंग इज रैम्पंट. Please try to understand. Women trafficking, children trafficking is rampant still today. और उस ज़माने में, मतलब पहले के ज़माने में तो means of communication बहुत कम थे, है ना. और वैसे भी ट्रैफिकिंग का मतलब यही है कि अगर कोई ट्रैप है तो उसमें तो कोई भी फंस सकता है. बिकॉज ह्यूमन बीइंग दे हैव सर्टन लिमिटेशंस. आपके पास फ़ोन नहीं है, कम्युनिकेशन का जरिया नहीं, आपके पास कोई है भी नहीं जो आपके लिए कदर करे. तो ऐसे हालात में सिचुएशंस बहुत अलग तरीके से हो जाते हैं. I was really at a loss about what to say or how to react. Their agony pained me deeply. बहुत सारी स्टोरीज सुन के मुझे ऐसा लगता था कि ये कितनी दर्दनाक कहानी है और मैं उनको कैसे सांत्वना करूँ, कैसे समझाऊँ उनको. उनके आंसू मैं रोक नहीं पा रही हूँ. Their agony pained me deeply. उनका दुख जान के मुझे भी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हुआ. It was on such visit that I got to know Tara, a middle-aged Gharwali, commercial sex worker in a temple. Looking at Tara, I could tell that she had been a very beautiful woman in her younger days. Even now, she came across as someone who was bold and spirited. तो वैसे अभी तारा के बारे में सुधामूर्ति जी लिख रहे हैं. वैसे तारा की कहानी है. मेरी तारा से मुलाकात हुई वहाँ पे जाके, जो एक मिडिल एजेड घरवाली कमर्शियल सेक्स वर्कर इन ए टेम्पल. एक टेम्पल में उनसे मुलाकात होती है. शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट. सुधामूर्ति जी नोस एंड सुधामूर्ति जी को पता है, लेकिन उनके साथ बहुत दिनों से बात नहीं हो पाई. ठीक है. लुकिंग एट तारा आई कुड टेल. तारा की तरफ देख के सुधामूर्ति जी इमेजिन कर रहे हैं कि यस, जब ये एकदम ज़्यादा यंग होंगे तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे. इवन नाउ, अभी वो मिडिल एज में है, फिर भी वो कैसे है? समवन हु वाज बोल्ड एंड स्पिरिटेड. बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है और स्पिरिटेड है. मतलब एक अपना खुद का उनके पास तेज है. अ वेरी गुड एंड व्हाट आई कैन से, अ पर्सन हु कैन रियली हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल. दैट वाज तारा. नाउ Tara did not know how to read and write and wanted my help as she thought I was a school teacher. That was fine with me. सुधामूर्ति जी बोल रहे हैं, तारा को मेरे से सीखना था लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि तारा जानती थी मैं एक स्कूल टीचर हूँ. ठीक है. और उसका इंटेंशन वही था मेरे से बात करने का. अगर हो सकता है तो दैट वाज फाइन विद मी. और मुझे वो चलता था. मुझे ज़्यादा बात नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन इनके हिसाब से अगर पढ़ाई लिखाई भी अगर मैं इनके लिए हेल्प कर सकती हूँ तो भी बहुत था, मेरे लिए काफ़ी था. इट वॉज फाइन विथ मी. इफ़ यू नो ऑफ एनी अदर लेडी टीचर, प्लीज लेट मी नो. I want to learn to read and
right. तारा उनके साथ बात कर रही है क्या? अगर आपको पता है कोई लेडी टीचर आपको पता है तो मुझे बता दो, मुझे लिखना है और पढ़ना है, मुझे सीखना है रीडिंग एंड राइटिंग. She told me the first time we met, the first visit में उनके साथ ये बात किया था उन्होंने. I don't want to call her to my house. I will go wherever the teacher wants me to. तारा बता रही है कि मैं उनके घर जाने के लिए तैयार हूँ. मेरे घर पे मैं उनको आने को नहीं बोलूँगी. मैं जहाँ पे भी वो लेडी टीचर है मैं उनके यहाँ जाके पढ़ना चाहती हूँ. See the love, तारा zest for knowledge. क्योंकि उसका कहानी अभी हमें पूरा पता नहीं है, लेकिन उसको पढ़ाई लिखाई में कितना इंटरेस्ट था. अभी तो आपका एज में आपको पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई का माहौल है, राइट. वेरी इंपॉर्टेंट. हार्ट ऑफ द डे इज व्हाट? टीचिंग, लर्निंग टू द फुलेस्ट. और वो अभी इतना मायूस भरी जिंदगी में भी जानते हैं कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि उनके पास वो रेस्ट है, वो उत्साह से उनको पढ़ना लिखना, वो समझते हैं कि मैं सीखूँ. So now, her zest for knowledge surprised me. तारा का जो zest for knowledge है, शिक्षा लेने का एक उत्साह, वो मुझे बहुत अचंभित कर रहा था. I wanted to know more about her. मुझे तारा के बारे में और जानना था. Once or twice I tried to broach the subject, but she was reluctant to talk about herself. She always seemed very sad. मैंने एक दो बार उससे जानने की कोशिश भी की कि आपका स्टोरी क्या है, आपके लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि आप इस प्रोफेशन में आ गए, लेकिन हमेशा ही वो टॉपिक को टाल देते थे. तारा ने कभी भी वो स्टोरी उनको कभी बताया नहीं था, लेकिन तारा हमेशा ही बहुत ज़्यादा नाखुश रहती थी. ठीक है. अब नेक्स्ट, इट वॉज राखी डे. कौन सा दिन है? राखी डे, रक्षाबंधन. सी द होल स्टोरी इज अबाउट द डे. In North Karnataka and the border areas of Maharashtra, this day is called Narli Purnima, which literally means to celebrate the full moon day with coconuts. I was in the area for a week, mainly visiting village schools in connection with our library project. तो राखी दिन है, जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे नारली पूर्णिमा दिन से ये दिन मनाया जाता है. आपको पता है बहुत सारे मछुआरे ना, फिशरमैन, what they do, they offer coconuts. सोने का भी नारियल होता है ना, वो पूजा करते हैं क्योंकि वो समंदर को भगवान मानते हैं. उनके लिए समुद्र भगवान होता है क्योंकि उनका लाइवलीहुड है ना, मछलियाँ और बाकी की चीज़ें जैसे बोटिंग वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, उनका लाइफ पूरा डिपेंड होता है समुद्र पे. तो नारली पूर्णिमा और राखी डे और रक्षाबंधन फॉर कोस्टल एरिया पीपल whose livelihood depends on the sea shore, all those professions related to sea, they offer their honors to the sea on this day, and it is known as Narli Purnima Day. They offer coconuts, real coconuts, maybe coconuts made out of gold as well, है ना. आपको पता है ना, जो कोंकण एरिया से होके बहुत सारे लोग वो उस दिन सोने का नारियल भी चढ़ाते हैं, वो अर्पण करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा माई बाप आप ही है समंदर से, क्योंकि वो समुद्र के किनारे बसते हैं. कभी बाढ़ आए, कभी कुछ बिखरे, फिर भी वो बाहर से कभी प्रस्थापित नहीं होते इधर उधर, वहीं पे रहते हैं. वो पूरा भरोसा रहता है क्योंकि हमारा यही एरिया है, उनकी खेती बाड़ी, गाँव मकान वहीं पे रहते हैं. एंड दे हैव फुल फेथ इनटू इट एंड दे ऑफर दिस gratitude, respect, love to the sea god on this day. Now, which literally means to celebrate the full moon day with coconuts. I was in the area for a week, mainly visiting village schools in connection with our library project. और वहाँ पे सुधा मूर्ति जी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट जो स्कूल्स में चल रहा था, पहले स्टोरीज में मैंने देखा है, वहाँ पे विजिट्स कर रहे थे. फिर I bumped into Tara again. तारा से उनकी मुलाकात हो गई इसी दिन. I still remember it was a bright sunny day and Tara was buying bangles. तो बहुत अच्छा दिन था, सूरज की रोशनी थी ज़्यादा और तारा मुझे मिली और वहाँ पे वो चूड़ियाँ खरीद रही थी. She was buying bangles. I wanted to talk to her. सुधा मूर्ति जी बोल रहे, मुझे उससे बात करना था. I wanted to talk to her. How should I address her? I wondered. सुधा मूर्ति जी सोच रहे हैं कि मैं उनको क्या करके आवाज़ दे दूँ, नाम तो पता नहीं,
ठीक है, तो सुधामूर्ति सोच रहे कि मैं इनको क्या नाम से पुकारूं, हाउ शुड आई एड्रेस हर, मैं इनको क्या नाम से पुकारूं, आई वंडर, मैं सोच रही थी, सिंस शी वाज ओल्डर देन मी, मेरे से उम्र में वो तो बड़े थे, आई डिसाइडेड टू कॉल हर अक्का, और उन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है, मैं उनसे अक्का करके आवाज लगा दूं, व्हिच मींस एल्डर सिस्टर इन कन्नड़ा। Here, akka is the word which triggers the memories of Tara's brother and see the coincidence now what will be the reaction. सुधामूर्ति ने सोच लिया हाँ मैं तारा करके आवाज लगानी उनको क्योंकि मेरे से उम्र में वो बड़े हैं और कन्नड़ा बिकॉज सुधामूर्ति इज फ्रॉम कर्नाटक एंड शी थिंक्स बड़ी बहन को तो अक्का बुलाते तो ये तो अच्छा लगेगा उनको, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनके हिसाब से राइट था, लेकिन क्या तारा के हिसाब से वो राइट था? Why? The story is something different. That word, it's possible that since long nobody would have called her by Akka, right? कभी घर का कोई साथ में नहीं है, बहुत सारे साल बीच में गुजर गए, अक्का बोलने वाला कोई नहीं है, और जो बोलता था उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख दिया है, बराबर? So now what will be Tara's reaction on this? I decided to call her Akka, which means elder sister in Kannada. Tara was sitting on the steps of the temple. Tara कहाँ पे बैठी थी? On the steps of the temple. मंदिर की सीढ़ियों पे तारा थी. Waiting for the crowd to disperse. बहुत ज़्यादा भीड़ का समय था और तारा वेट कर रही थी थोड़ा सा भीड़ कम हो जाए तो मंदिर में जाके भगवान के दर्शन. So she was waiting and she was sitting on the steps of the temple. I went towards her. सुधामूर्ति जी उनके पास गए. She looked at me and smiled. तारा ने सुधामूर्ति के तरफ देखा और स्माइल किया. I thought she was sad. स्माइल किया तो भी सुधामूर्ति जी जानते हैं कि असल में वो दुखी है, दुखी दिखाई दे रहे थे. और was I sad? क्या मैं खुद दुखी थी? खुद को ही प्रश्न पूछ रहे सुधामूर्ति जी. I did not know. मुझे पता नहीं था. अभी जो आगे का स्टोरी उसका बैकग्राउंड सेट हो गया है. There is something serious about to happen. Suddenly I sensed anger. No, I tried to begin a conversation by returning her smile. सुधामूर्ति जी ने कोशिश की कि तारा ने स्माइल किया उनकी तरफ देख के, सुधामूर्ति जी ने भी रिटर्न स्माइल किया और सोच रहे थे कि चलो कुछ तो बात शुरू करते हैं. Let's begin a conversation with Tara. Tara Akka, there is such a crowd because of Narli Purnima. You will have to wait for a long time to get here. Most probably she is aware of Tara as her name. Sorry, I might have told you that she wasn't aware of, but then just to call her singularly wasn't good for her. Generally, we offer respect to people who are elder to us, and so she is calling Sudhamurthy. She is calling her as Tara Akka. What is that she asked? Tara Akka. There is such a crowd because of Narli Purnima. वो बात कर रहे हैं कि तारा का आज तो नारियल पूर्णिमा है, बहुत सारी भीड़ है मंदिर में. You will have to wait for a long time to get it. आपको बहुत समय रुकना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, दर्शन के लिए आपको तो बहुत समय आज रुकना पड़ेगा, ठीक है? Suddenly I sensed anger. I could see it in her eyes. She began shouting at me. Oh my God! सुधामूर्ति जी ने तो प्यार से बात किया था, कुछ तो बात करना था. वो बोल रही थी तारा का बहुत ज़्यादा भीड़ है, नारियल पूर्णिमा है, बहुत टाइम आपको रुकना पड़ेगा बाहर. लेकिन तारा बहुत ज़्यादा गुस्से में आई थी और बहुत ज़्यादा गुस्से में उन्होंने देखा सुधामूर्ति जी की तरफ और जोर ऊंची आवाज़ में बात करने लगी. टीचर डोंट कॉल मी अक्का. टीचर बोलते थे क्योंकि उनको शायद से उनका नाम पता नहीं होगा, लेकिन उनके लिए टीचर ही थे तो बोलते थे टीचर डोंट कॉल मी अक्का, मुझे अक्का करके मत बुलाओ. आई डिसलाइक दैट वर्ड. ये शब्द मुझे पसंद नहीं है. आई डिसलाइक दिस वर्ड. All these relationships like brother and sister exist in your world. ये आपकी दुनिया में होंगे. ब्रदर और सिस्टर, भाई और बहन, ये सारे वर्ड्स जो है, रिलेशनशिप जो है, ये संबंध आपकी दुनिया में होंगे. नॉट इन माइंड. मेरी दुनिया में ये शब्दों को कुछ जगह नहीं है, कुछ स्थान नहीं है. डोंट एड्रेस मी लाइक दैट. मुझे आप अक्का करके मत बुलाओ, मत पुकारो. यू कैन कॉल मी तारा, तारा बाई, बट नॉट तारा अक्का. मुझे आप तारा बुला सकते हो, तारा बाई बुला सकते हो और
Tara, Tarabai, that's enough, but not Tara Akka. In my world, there is only one relationship, that of a man and a woman. Since she is into the profession of prostitution, she has deeply thought of this gender genesis, and there are no such other relationships because she had been badly exploited by her own brother, and her own brother had sold her off then years back. That story we will get to know now. तो बता रहे थे हमारे दुनिया में तो भाई बहन ऐसा कुछ रिश्ता नहीं है, हमारे लिए सिर्फ एक ही दुनिया और इसमें सिर्फ एक पुरुष और स्त्री इतने ही रिश्ते होते हैं. Tears rolled down my eyes. सुधा मूर्ति की आंखों में आंसू आ गए. See the difference. It is a real life experience. सुधा मूर्ति जी को जोर जोर से कोई बोल रहा है. उन्होंने तो प्यार से बात की थी और उन्होंने इतना भड़क गए और जोर से बताने लगे कि आप मुझे कभी भी आपका करके बुलाने का नहीं. आपकी दुनिया में हो सकता है ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप, मेरे दुनिया में सिर्फ एक स्त्री और पुरुष ही नाकामी जाती है. Tears rolled down my eyes. मेरे आंखों में पानी आ गया. सुधा मूर्ति जी also felt so tired. Instead फील हुआ उनको कि क्या रीजन है पता ही नहीं. I understood the bitter truth behind what she said. और तुरंत उनको पता चला कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है. One of the volunteers who had accompanied me was very upset. सुधा मूर्ति के साथ में एक वॉलंटियर भी थे. उनको भी बेहद बुरा लगा कि अरे मैडम को ऐसा बोला, मैडम का इतना दिल दुखाया और कुछ तो सच में बहुत ज़्यादा ट्रेजिक इंसिडेंट है, इसके लिए और रिएक्ट कर रहे हैं. He wanted to tell Tara who I was. और वो जो वॉलंटियर थे उनको लगा कि आप बताएं उनको कि अरे आप इनसे ऐसा बात नहीं कर सकते. ये सुधा मूर्ति जी आपको करने के लिए आए हैं, इतनी बड़ी हस्ती है पूरे हमारे देश में विश्व में और आप उनके साथ ऐसा बात करना गलत है. He wanted to tell Tara who I was. I stopped him. सुधा मूर्ति जी ने लेकिन उनको रोका, बोला कि आप कुछ मत बोलो, ठीक है देखते हैं क्या बात है. Tara, I'm sorry if I hurt your feelings. I said politely. I used the word akka because you are older than me. I'm sorry if that offended you. सुधा मूर्ति जी बोल रहे हैं कि मुझे माफ़ करना अगर मैंने आपकी भावनाओं को दुख पहुंचाया है, मुझे माफ़ करना. और मैंने सिर्फ आपका ये वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया ताकि yes. What is Tara holding in her hands? What is there in Tara's hand? All of you may answer. There is something in Tara's hand. What is that? Please tell her. Good morning, dear. You all been shooted and it is going to be uploaded. Yes. What is Tara holding in her hand? A cat, a mouse, then what? Pen, notebook. Okay, bangles. You may shoot the students who are answering them correct. Okay. So what was there in her hands? Bangles. Okay. So bangles were there. Yes. You may please sit down. Pay attention. You may sit down. Then what happened next? Why is she crying? There is something in her hand. She is crying uncontrollably. She is wiping her tears. And now comes the situation into which the story is going to be unfolded. I put my hand on her shoulder. सुधा मूर्ति जी ने तारा के कंधे पे हाथ रखा. I did not speak. और कुछ बात नहीं किया. Our silence was much more meaningful than words. कभी-कभी बात करने से भी ज़्यादा एक टच से भी काम हो सकता है. यहाँ पे जो टच किया है सुधा मूर्ति ने वो बहुत ही उनको सपोर्ट सिस्टम से कि आप क्यों रो रहे हैं, आप इतना क्यों दुख कर रहे हैं. I am there to know about you. I am there to help if you want my help from you. After some time she stopped crying but still looked very sad. थोड़ा टाइम के बाद वो उनका रोना बंद हो गया, वो शांत हो गए लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे थे. I sent my volunteer to fetch a cup of tea for her. और सुधा मूर्ति के साथ जो वॉलंटियर है वो उन्होंने उनके लिए एक कप चाय का लाने के लिए वो भेज गए सुधा मूर्ति जी. ठीक है, क्योंकि अभी बहुत बार हम ऐसा होता है कोई बहुत ज़्यादा रो रहा है, अभी शांत हो गया तो उसको हम क्या बोलते गए, थोड़ा सा पानी पियो नहीं तो चाय में तो कुछ तो थोड़ा सा खा लो उसके बाद में बात करो. It is a general traditional follow-up. She said, "Teacher, I'm sorry I was rude to you." अभी तारा बात करती है, टीचर मुझे माफ़ कर दो,
मैंने आपसे बहुत ही ठीक तरीके से बिहेव किया, रूडली बिहेव किया। यू हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक, आपकी कुछ गलती नहीं है। आफ्टर ऑल यू हैव शोन रिस्पेक्ट टू मी बाय कॉलिंग मी अक्का। दरअसल आपने मुझे अक्का बता के मेरे लिए सम्मान ही दिया है। Till this day, no one has ever used such a good word to address me. आज तक मेरे लिए किसी ने भी इतना अच्छा शब्द इतने सालों में किसी ने भी यूज नहीं किया है। People call me by different names. लोग मुझे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। I don't want to repeat them to you. मुझे आपको बताने में कुछ दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अक्का ये वर्ड मेरे लिए किसी ने भी इतने सालों में इस्तेमाल नहीं किया। However, अक्का brought back childhood memories. अक्का ये वर्ड से मेरे बचपन की बहुत सारी यादें मेरे मन में इकट्ठा हो गई। Tara started talking. She spoke of her poverty and of losing her parents in an epidemic. तारा को अपना बचपन याद आ गया और वो बता रही है कि कितना गरीबी थी और मेरे पेरेंट्स माँ बाप भी एपिडेमिक में एक एपिडेमिक यू नो और एपिडेमिक फॉर एग्जांपल कोविड वाज एन एपिडेमिक जो बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे डिसीजेस है पैंडेमिक जिसको हम बोलते हैं पैंडेमिक इज अ सिमिलर वर्ड फॉर एपिडेमिक ऐसे बहुत इसमें कि हजार घर गाँव उसमें बहुत सारे लोग मरते हैं एक ही कम टाइम में बहुत सारे लोग they lose their lives because of the contagiousness of those diseases. So वो epidemic में उनकी मदर फादर भी चले गए. A younger brother was all she had और सिर्फ छोटा भाई था तारा के साथ. She adored him and though she was only a child herself, she found work as a coolie to look after him. तारा वो खुद भी एक छोटी बच्ची थी लेकिन उससे भी छोटा उसका भाई था. अभी मदर फादर को गुजर गए तो उसने खुद ने सोचा कि मैं इसका ख्याल रखूंगी. खुद छोटी बच्चे होने के बावजूद उसने काम ढूंढ लिया एक कोली का और उसकी परवरिश करने लगी. But when she was 12 years old and her brother was only 11, he sold her to an agent in a red light area. जब तारा 12 साल की थी और उसका भाई 11 साल का तब रेड लाइट एरिया में उनके भाई ने तारा को बेच दिया. He might have talked to an agent and with the attraction of money that would have offered, that brother sold off Tara in the profession of prostitution. This is the tragic life. He had taken her there on the pretext of visiting the village fair. और झूठ में बोल के भाई उनको विलेज फेयर में चलो हम घूमने जाते हैं मेला देखने के लिए ऐसा बोल के भाई लेके गया था और वहाँ पे उसने उनके एजेंट के थ्रू उसको बेच दिया था. ऑफ कोर्स बाद में कुछ बात नहीं हो पाया होगा. He had taken her there on the pretext of visiting the village fair that was on a नारियल पूर्णिमा डे. और वो कौन सा दिन था? नारियल पूर्णिमा डे. जहाँ पे वहाँ पे मेला लगा है. ठीक है बहुत सारे लोग हैं भीड़ है मंदिर में दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं और ऐसे भीड़ में ऐसे मेले में एक झूठ मूठ कहानी रचा के उनके छोटे भाई ने उनको बेच दिया था. दिस वॉज द होल कनेक्शन ऑफ वर्ड अक्का, बैंगल्स, द डे ऑफ नारियल पूर्णिमा, राखी डे एंड ऑफ कोर्स मीटिंग विद सुधाजी. एंड द लास्ट पैराग्राफ नाउ. It was now clear to me what she was going through sitting on the steps of that temple. अब मुझे समझ में आया. सुधा मूर्ति जी सोच रहे हैं अब मुझे समझ में आया इस मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ के तारा इतनी क्यों रो रही है. It was नारियल पूर्णिमा day once again and that word akka must have triggered in her mind something she had been desperate to forget all her life. मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ के वो मेले की तरफ देख के राखी पूर्णिमा के दिन पे वो कुछ चीज़ें बोलने की कोशिश कर रही है भूलने की कोशिश कर रही है और वही सारी बातें अक्का नाम से उनको किसी ने याद दिलाई. और यही एक वजह था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई सुधा मूर्ति पे. फिर बाद में बहुत ज़्यादा रोना आया और फिर बाद में अपना स्टोरी उन्होंने उनको बताया. Word akka must have triggered in her mind something she had been desperate to forget all her life. अक्का ये वर्ड से जुड़ी हुई हर बात को भूलना चाहते थे लेकिन इस वर्ड में फिर वो सभी बातें उनको याद दिलाई थी. राखी is not merely about a sister tying a symbolic thread on her brother's wrist. राखी इसका मतलब सिर्फ
एक बांधा हुआ धागा नहीं है. See, a bond. Bonds are not always written. In relations, bonds are not written actually. If somebody says that yes, I love you, I will take good care of you, it's not written. It is acted. It is believed and it is trusted. Right? So this is a bond between a brother and a sister which is betrayed, broken, deceived, not observed, right? On the special day of Rakhi. Rakhi is not merely about a sister tying a symbolic thread on a brother's wrist. It signifies the bond between a brother and a sister. ये symbolic होता है, कोई भी राखी सिंबल है. उस धागे से अलग से ना ही भाई की रक्षा होने वाली है, ना ही बहन को हमेशा वो साथ देगा ऐसा मतलब है. लेकिन ये बॉन्ड है जो कहीं पे लिखा नहीं जाता. That is understood and that is observed. वो माना जाता है कि ये प्यार का एक सिंबल है, एक संकेत है. And Tara, for no fault of hers, was pushed into her dreadful life by her own brother, that too on a Rakhi day. तो राखी के दिन पे ही उनके भाई ने उनको ऐसी दर्दनाक भरी जिंदगी में धकेल दिया था. ये सभी चीज़ों से कनेक्शन होके हमारा ये स्टोरी हमारे पास सुधामूर्ति जी ने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के तौर पे शेयर किया है. विद द टाइटल अ बॉन्ड betrayed on a Rakhi Day. So this is all about, I'm sure there will be so many queries in your mind. And I hope you have understood the story well. And let's learn out of this. That yes, there are some women who have been forcibly pushed into certain professions due to no fault of theirs. And we must be sympathetic towards them. Okay? So this is all for the day. And hope you all have understood. If any queries, you may ask me whenever you have it later on in the next week. Till then, thank you, take care, and bye-bye.